internally its structure is different at different levels. Its structure differs at the different levels. So we will take three sections in the lower part, that is the pyramidal decussation, at the level of the pyramidal decussation. In the middle area, that is at the level of the sensory decussation, and at the level of the olive, at the level of the olive. So तीन सेक्शंस हम ले रहे हैं क्योंकि तीनों सेक्शन पे हमें इंटरनली स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. सबसे पहले अगर हम देखेंगे एट द लेवल ऑफ द pyramidal decussation, this is the first section. At the level of the pyramidal decussation, यहाँ पे अगर हम देखेंगे lower part जो है, its structure resembles with the spinal cord as it has the outer white matter and inner gray matter. लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो है ग्रे मैटर, इसका पोस्टीरियर पार्ट, this will get elongated and form few elongations. This elongation, this is known as the nucleus gracilis and this is the nucleus cuneatus on both sides. और ये जो है, this is the posterior horn of the spinal cord. This is the posterior horn of the spinal cord. Posterior horn of the spinal cord will get elongated and will form the spinal nucleus of trigeminal and spinal tract of trigeminal. This cap-like structure, this is the spinal tract of trigeminal. This is the central canal. This is the anterior and posterior spinocerebellar tract. Spinocerebellar tract. और ये है हमें lateral spinothalamic tract. ये जो section है, this section is called the section at the level of the pyramidal decussation. Why? Because here the decussation of the fibers occurs. First, let me tell you, there are three sets of fibers which runs from the cerebral cortex through the superior cerebral pedunculus, through the pons and through these pyramids. वो three sets of fibers कौन कौन होते हैं? एक तो होता है corticospinal, corticonuclear और corticopontine. Corticospinal और corticonuclear, ये जो fibers है, only these two sets of fibers will run through the pyramidal tract. ये जो corticopontine fibers हमें pons में पहुंच के at the level of the lower border of the pons will go to the respective side of the cerebellum. उसके बाद ये अगर हम देखेंगे, these fibers जो यहाँ पे हमें आ रहे थे through the pyramids, at the lower end of the pyramid, these fibers will decussate from interior to posterior towards the lateral side. ये क्रॉस कर रहे हैं हमें towards the lateral side, from interior to posterior, and these fibers will form lateral corticospinal tract. This is the lateral corticospinal tract. Only 70% of fibers will cross to the opposite lateral side and will form the lateral corticospinal tract. 20% fibers है वो uncrossed, those remain the uncrossed and will run as the anterior corticospinal tract and will run as the anterior corticospinal tract. These are the 20% fibers. जो बाकी 5% fibers है, they will run in the lateral corticospinal tract. Now, while crossing from anterior to posterior, these fibers will cut down the anterior horn of the gray matter. Anterior horn of the gray matter. And this anterior horn of the gray matter will form supraspinal nucleus of cervical nerve first and spinal nucleus of accessory nerve. So ये जो anterior horn हमें कट हो रहा है, ये क्या हमें बना रहा है? It will form the supraspinal nucleus of the cervical nerve first or spinal nucleus of the spinal accessory nerve. This was regarding the section at the level of the pyramid. Now, section at the level of the sensory decussation. This section, this is the
at the level of the sensory decussation. सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलर क्या क्या है इसमें, इस वाले और इस वाले स्ट्रक्चर में। यहां पे अगर देखोगे, दिस इज द पैरामिड, पैरामिड यहां पे भी है, दिस इज द पैरामिड, दिस इज द पैरामिड। यहां पे आप देखोगे रेटिकुलर फॉर्मेशन, दिस इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन, आप यहां पे भी डाल सकते हो, बिकॉज इट इज सेफ टू ड्रॉ द रेटिकुलर फॉर्मेशन थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम as it exists throughout the brain stem. सेंट्रल कनाल यहां पे है, सेंट्रल कनाल यहां पे है, ग्रे मैटर इज प्रेजेंट, ग्रे मैटर यहां पे है। लेकिन यहां पे क्या है, दिस ग्रे मैटर इज रिड्यूस्ड। यहां पे आप अगर देखोगे, यहां पे ग्रे मैटर इट रिजेंबल्स विद द स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन यहां पे थोड़ा सा बचा है, दैट इज हार्ट शेप्ड ग्रे मैटर। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे हमें था दिस वन, दिस इज द न्यूक्लियस ग्रेसालिस एंड दिस इज द न्यूक्लियस क्यूनेटस। इसके पोस्टीरियरली अगर हम देखेंगे, दिस व्हाइट वाला, दिस द फेसिकुलस ग्रेसालिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस। दिस फेसिकुलस ग्रेसालिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस विल फॉर्म द पोस्टीरियर कॉलम, विल फॉर्म द पोस्टीरियर कॉलम। यहां पे अगर देखोगे, दिस न्यूक्लियस ग्रेसालिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस ग्रे मैटर। यहां पे सेपरेट है न्यूक्लियस ग्रेसालिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस। यहां पे अगर आप देखोगे, वेंट्रल एंड डोर्सल, दिस इज द वेंट्रल एंड दिस इज द डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। यहां पे अगर देखोगे, लैटरल सुपाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, यहां पे देखो लैटरल सुपाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। This section is called section at the level of the sensory decussation. What is this, the sensory decussation? Sensory decussation is simply formation of medial lemniscus. Formation of medial lemniscus. This triangular structure, this is the medial lemniscus. अब ये बंदा कैसे medial lemniscus? ये जो था पोस्टीरियर कॉलम, दिस इज द पोस्टीरियर कॉलम, fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus, it forms the posterior column. This posterior column, when we ascend upwards, ये posterior column ये देते हैं हमें first order neurons. These first order neurons ends up into nucleus gracilis and nucleus cuneatus. From these nucleus gracilis and nucleus cuneatus, another set of neurons arises, which cross in the midline to the opposite side, and these fibers forms the medial lemniscus. This is the medial lemniscus. और ये जो fibers है, these are the second order neurons, और इसको हम बोल रहे हैं internal orchid fibers, IAF. While crossing from posterior to anterior towards the midline, ये जो हमारा है posterior horn, this will get separated, now it will form the separate spinal nucleus of trigeminal and tract of trigeminal. So ये न्यूरॉन्स हमें सेपरेट कर रहे हैं posterior horn को, और सेपरेट एक स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल और स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और न्यूक्लियस, दैट इज द एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस। ये जो है, यहाँ से हमें पोस्टीरियर कॉलम से कुछ फाइबर्स आ रहे हैं, दीज फाइबर्स विल एंड अप इन दिस एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस, और यहाँ से हमें फाइबर्स निकल रहे हैं posteriorly. These fibers will go to the cerebellum. ठीक है, इन फाइबर्स को हम बोल रहे हैं, क्योंकि पोस्टीरियर निकल रहे हैं तो पोस्टीरियर, एक्सटर्नली निकल रहे हैं एक्सटर्नल, और आर्केड फाइबर्स, posterior external arcade fibers. There is one more set of fibers. This nucleus is known as the arcade nucleus. This nucleus is known as the arcade nucleus. This one.
दिस इज नोन एज द आर्केड न्यूक्लियस। एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, देयर आर 3 सेट्स ऑफ फाइबर्स, कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोपोंटाइन एंड कॉर्टिकोन्यूक्लियर। उसमें से हमने बोला था कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोन्यूक्लियर जो है, दीज फाइबर्स विल रन थ्रू द पिरामिड। लेकिन जो कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स हमने बोला था ये एंड अप होते हैं, ये यहाँ पे पॉन्स में आके फिर क्रॉस करते हैं सेरिबेलम की तरफ। लेकिन कुछ फाइबर्स जो है वो रिलाई करते हैं इस आर्केड न्यूक्लियस में। दिस आर्केड न्यूक्लियस is nothing but the displaced nucleus of the pons during the embryonic life। ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ होता है, ये दिस इज द आर्केड न्यूक्लियस। सो यहाँ से जब कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स आ गए, कुछ फाइबर्स हमें आते हैं आर्केड न्यूक्लियस रिलाई करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ से आर्केड न्यूक्लियस से फाइबर्स निकल के ये क्रॉस कर रहे हैं टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। एंड दीज फाइबर्स आर कॉल्ड, क्योंकि इंटीरियरली है, इंटीरियर, और एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल आर्केड फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड इंटीरियर एक्सटर्नल आर्केड फाइबर्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे मीडियल लेमनिस्कस के बाद हमें एक और स्ट्रक्चर होता है इन द मिड लाइन, दिस इज कॉल्ड द MLF, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। Medial longitudinal fasciculus, it connects the 3rd, 4th, 6th, 9th and 11th cranial nuclei and is concerned with the movement of the neck and gaze of the eyes। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज द ग्रे मैटर। यहाँ पे हमें इस ग्रे मैटर में सेंट्रल कनाल होती है। ऑन ईदर साइड there are 3 nuclei from interior to posterior। ये जो है this is the hypoglossal, this is the dorsal vagus and this is the nucleus tractus solitarius। so from interior to posterior, hypoglossal, dorsal nuclei of vagus and nucleus tractus solitarius। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें inferior olivary nucleus का पार्ट भी आता है। उसके बाद let's move to the सेक्शन एट द लेवल ऑफ द ऑल्यू। जब हमने ऑल्यू की बात की तो यहाँ पे ऑल्यू भी होगा, ये माइंड में आना चाहिए, एट द लेवल ऑफ द ऑल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस थिंग, ये जो सेंट्रल कनाल है एट द लेवल ऑफ द ऑल्यू, दिस इज एब्सेंट एट दिस लेवल वायर द मेडुला डाइवर्जेस, वायर द मेडुला डाइवर्जेस। जो सेंट्रल कनाल हमें डाइवर्ज होती है यहाँ पे, इमेजिन करो ये सेंट्रल कनाल हमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है और यहाँ पे ओपन अप हो जाती है लाइक दिस एंड विल फॉर्म द इंफीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल। दिस इज द इंफीरियर मेडुलरी वेलम। इंफीरियर मेडुलरी वेलम हमें रूफ ऑफ द 4th वेंट्रिकल बना रहा है। तो दिस इज द कैविटी ऑफ द 4th वेंट्रिकल एंड दिस इज द फ्लोर। सो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है ये हमें लाई करेंगे अलोंग दिस सेंट्रल कनाल ऑन ईदर साइड। सबसे पहले हाइपोग्लोसल, इंटीरियर है, मीडियली है, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। उसके बाद डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। उसके बाद न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, NTS, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस। सो ये इस वाले सेक्शन में भी प्रेजेंट थे, इस वाले सेक्शन में भी प्रेजेंट है। यहाँ पे भी मीडियल लेमनिस्कस है, यहाँ पे भी मीडियल लेमनिस्कस है, यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, यहाँ पे भी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दैट इज टेक्टोस्पाइनल न्यूक्लियस, दैट इज टेक्टोस्पाइनल न्यूक्लियस। टेक्टोस्पाइनल न्यूक्लियस यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं बिकॉज इट रन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ पे भी आप देखोगे ये वाला न्यूक्लियस जो है, दिस इज द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल। यहाँ पे भी ये है, सो यहाँ पे भी ये है। नाउ व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज डिफरेंट, एक तो यहाँ पे ऑल्यू पूरा है, यहाँ पे जो डिफरेंट है दैट इज द न्यूक्लियस एम्बिगुअस। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड व्हाट इज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, this contains the 7th, 9th and 10th cranial neuronuclei. This is a combination of 7th, 9th and 10th cranial nuclei. और nucleus ambiguous जो है, this one, this is the combination of 9th,
10th एंड 11th cranial nuclei। और वी कैन से यहाँ से हमें फाइबर्स जो इमर्ज होते हैं, these will emerge as a vagus nerve, or we can say these nuclei, nucleus ambiguous, dorsal nucleus of vagus and nucleus tractus solitarius, these will form the component of the vagus nerve। और यहाँ पे एक और न्यूक्लियस है, this nucleus, this is the inferior vestibular nuclei, this is the inferior vestibular nuclei। Although I have told you that vestibular nuclei is present इन द पॉन्स, लेकिन ये इसका एक्सटेंशन है, लाइक ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस, वो हमें थ्रू आउट प्रेजेंट होता है ब्रेन सिस्टम में। तो उसके बाद दिस इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन, दिस इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। और यहाँ पे हमें एक और स्ट्रक्चर है, दिस इज द इंफीरियर सेरिबेलर पेडुनकल, दिस इज द इंफीरियर सेरिबेलर पेडुनकल। बोथ साइड्स पे हम देखेंगे इंफीरियर सेरिबेलर पेडुनकल, दिस इज द पिरामिड, दिस इज द पिरामिड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दिस इज द पिरामिड। सो दिस वाज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर।